न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार मादिगा को बनाने की मांग। बीदर जिले में गुड फ्राइडे पूरी श्रद्धा से मनाया गया। कर्नाटका में 3 सीटों के लिए समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर जिला मादिगा होराटा समिति ने बीदर जिले से कांग्रेस मादिगा को लोकसभा में टिकट देने की मांग की। आज शहर के पत्रिका भवन में मादिगा समाज द्वारा एक प्रेस मीट में कहा गया कि आने वाले 2 दिनों में अगर कांग्रेस ने मादिगा समाज को टिकट नहीं दिया तो आंदोलन किया जाएगा। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। समाजದ ಹಿರಿಯರಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ರೋಹಿದಾಸ್ ಗೋಡೆ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾದಿರಿ ತುಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಹುನ್ನಾರ ನಡೀತದೆ ಮಾದಿರಿ ತುಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಸವಿಸ್ತರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ಮಾದಿಗ ದಂಡೋರ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಏನು ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ 7 ಸಲ ಸಂಸದರಾಗಿ 2 ಸಲ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ KH ಮುನಿಯಪ್ಪರಿಗೆ ಏನು ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ನಾಸೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅಂತೇಳಿ KH ಮುನಿಯಪ್ಪ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪುಟಗೋಸಿ ತೈಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅವನಿಗೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಏಜ್ ಏನು ಇವ್ರದ್ದು ಏಜ್ ಏನು, ಇವ್ರ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದ್ದೋಟ ಒಂದು ಏಜ್ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪುಟಗೋಸಿ ಅಂತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಖಂಡಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು AICC ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೇಲೆ ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲ ಅಣ್ಣತಮ್ಮರಿ ಸೋದರಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಂಬ ನಮ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ನೋಡಿವಿ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಕೂಡ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಯಾವಾಗ ನೀವು ಸೋದರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸುಣ್ಣ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಣ್ಣಚ್ಚಂತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾದಿಗ ಸಮಾಜದವರಿಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯಾಯ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ KH ಮುನಿಯಪ್ಪರು ನಮ್ಮ ಮಾದಿಗ ಸಮಾಜದ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸುಮಾರು 7 ಸಾರಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 2 ಸಾರಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲೂಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲಾ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಮಾದಿಗ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರ ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿಡಿದು ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾದಿಗ ಸಮಾಜದ ಓಟ್ ಹಾಕೋತಾ ಬರ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ. 7 ಸಾರಿ ಗೆದ್ದು 2 ಸಲ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇವರು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಥರ ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರ ಹಳೆಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ಅದೇ ಥರ ಅವರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರವರು ಒಂದು ಜೋಡೆ ಎತ್ತಿದ್ದಪ್ಲೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಜೋಡೆ ಯಾವ ಥರ ನಡೆದಾರ ಆ ಥರ ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್? ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಅವರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಖರ್ಗೆ ಅವರು. ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ವಿನಂತಿ ಇದೆ, ಇವರು ಏನು ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಡುವ ಕಾರಣ ಅವರೇ ಮೂಲಭೂತರು. ಇವತ್ತು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಪದೇ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ತಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅವರಿಗೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರಾಗಲಿ, DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಆಗಲಿ, ಸುರ್ಜೇವಾಲಾಗಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ। बीदर जिले में गुड फ्राइडे पूरी श्रद्धा से मनाया गया। बीदर शहर के मंगलपेट क्षेत्र में रहे मेथोडिस्ट चर्च में गुड फ्राइडे के मौके पर विशेष प्रार्थना आदि का आयोजन किया गया, जिसमें क्रिश्चियन समुदाय के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। हालांकि बीदर में रहे अन्य चर्चों में भी विशेष प्रार्थना का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कांग्रेस ने कर्नाटक की 3 लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर एच.सी. महादेवप्पा के बेटे सुनील बोस को चामराजनगर सीट से टिकट मिलने के साथ ही मंत्रियों के रिश्तेदारों को मैदान में उतारने का सिलसिला जारी रहा। यह पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री एम वीरप्पा मोइली के लिए निराशा की बात है, क्योंकि पार्टी आलाकमान ने चिकबल्लापुरा सीट के लिए रक्षा रमैया की घोषणा की है। मोइली के अलावा पूर्व मंत्री एच.एन. शिवशंकर रेड्डी भी प्रबल दावेदार थे। पार्टी सूत्रों ने कहा कि रेड्डी पार्टी छोड़ सकते हैं। रक्षा की उम्मीदवारी का मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने जोरदार समर्थन किया था। उनका मुकाबला पूर्व मंत्री डॉक्टर के सुधाकर से होगा। भले ही पूर्व सांसद वीएस उग्रप्पा बल्लारी निर्वाचन क्षेत्र की दौड़ में थे। पार्टी ने संदूरू विधायक ई तुकाराम को चुना, जो भाजपा के बी श्रीरामुलु से मुकाबला करेंगे। भाजपा ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के बेटे यतीन्द्र सिद्धरामैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर हमला करने के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करके आदर्श आचार संहिता एमसीसी का उल्लंघन किया है। भाजपा की राज्य इकाई ने चुनाव आयोग को लिखे पत्र में पूर्व विधायक के खिलाफ आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार एमसीसी का उल्लंघन किया है। पत्र में कहा गया है कि यह हमारे नेताओं पर निजी हमला है। यतीन्द्र सिद्धरामैया ने पूरी तरह से निंदनीय बयान दिया है और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निजी हमला है। चामराजनगर जिले के खनूर शहर में पार्टी की एक बैठक को संबोधित करते हुए यतीन्द्र ने गुरुवार को कथित तौर पर कहा कि गृह मंत्री अमित शाह एक गुंडे उपद्रवी हैं। उन पर गुजरात में हत्या का आरोप था और उन्हें निर्वासित किया गया था और मोदी ने ऐसे लोगों को बगल में रखकर राजनीति की। रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले में मुख्य साजिशकर्ता मुजम्मिल शरीफ को गिरफ्तार करने के एक दिन बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने मुख्य आरोपी मुसाविर हुसैन शाजीब और एक अन्य प्रमुख साजिशकर्ता की तस्वीरें और विवरण जारी की। अब्दुल मतीन तहा और प्रत्येक की गिरफ्तारी के लिए विश्वसनीय जानकारी के लिए 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की। शाजीब उर्फ शाजेब उर्फ मोहम्मद जुनेद हुसैन उर्फ मोहम्मद जुनेद सईद मस्जिद रोड, तीर्थहल्ली, शिवमोगा का निवासी है। वह गोरा, लंबा और उसका शरीर जिम जैसा है। वह अपनी पहचान छुपाने के लिए मोहम्मद जुनेद सईद के नाम पर जाली ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य सामान, जाली आईडी दस्तावेज का उपयोग कर रहा है। उनके पसंदीदा कपड़े जीन्स और टी शर्ट हैं। वह काली स्मार्ट घड़ी, मास्क, विग और नकली दाढ़ी पहनते हैं। शाजीब लड़कों के हॉस्टल, पीजी आवास और कम बजट वाले हॉस्टलों और आवासों में रहने की जानकारी एनआईई ने दी है। एनआईई ने कहा कि वह विघ्नेश और सुमित जैसे हिंदू नामों का इस्तेमाल करता है। वह मध्यम कद का है और सामने से गंजा है। वह जीन्स, टी शर्ट, टोपी, हुडी, मास्क और नकली दाढ़ी पहनना पसंद करते हैं। ताहा पुरुषों के हॉस्टल और कम बजट वाले आवासों में भी रहता है। एनआईए ने ताहा पर इनाम की घोषणा की। मई 2020 में केंद्रीय एजेंसी ने अल हिंद आईएस बेंगलुरु मॉड्यूल मामले 4220 एनआईए डीएलआई में उसकी गिरफ्तारी के लिए सूचना देने पर 3 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की, जिसे हत्या के पीछे माना जाता है। तमिलनाडु में एक हिंदू नेता की। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। हसन जिले के प्रभारी मंत्री के एन राजन्ना ने शुक्रवार को कहा कि उपायुक्त सी सत्यभामा के खिलाफ जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा के आरोप निराधार हैं।
अरसीकेरे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद मीडिया से बात करते हुए राजन्ना ने कहा कि गौड़ा किसी के भी और संस्थान के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं, लेकिन शिकायत की सामग्री वास्तविक होनी चाहिए। गौड़ा को झूठे आरोपों से वरिष्ठ अधिकारियों की छवि खराब करने की आदत है। किसी भी डिप्टी कमिश्नर का कर्तव्य सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करना है। सत्यभामा ने वैसा ही किया, इसमें गलत क्या है? उन्होंने पूछा। यह याद किया जा सकता है कि गौड़ा ने भारत के चुनाव आयोग ईसीआई से डीसी को स्थानांतरित करने का आग्रह किया था। मंत्री ने कहा कि ईसीआई को गौड़ा की शिकायत के आधार पर कार्यवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह आम आदमी के हित में काम करने वाली एक ईमानदार अधिकारी है। भाजपा उम्मीदवार गोविंद एम कारजोल को भाजपा कार्यकर्ताओं के कड़े विद्रोह का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने शहर के चल्लाकेरे गेट के पास और शहर में बॉयज जूनियर कॉलेज के सामने स्थित भाजपा अभियान कार्यालय के पास गो बैक कारजोल के नारे लगाए। जैसे ही कारजोल ने आगमन की खबर कारजोल की उम्मीदवारी का विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं के एक वर्ग को मिली, वे चलकेरे गेट के पास एकत्र हुए और भाजपा उम्मीदवारों को प्लाई कार्ड दिखाए। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए जिला पुलिस ने प्रत्याशी को सुरक्षा मुहैया कराई। गर्मी का सामना करने वाले कारजोल ने भाजपा अभियान कार्यालय तक पहुंचने के लिए दूसरा रास्ता अपनाया, जहां उन्हें भाजपा के विद्रोहियों से और अधिक गर्मी का सामना करना पड़ा। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र कुमार मीणा ने कहा कि पुलिस अलर्ट पर थी और 14 लोगों को हिरासत में लिया, जो गोविंद कारजोल पर अंडे पत्थर फेंकने वाले थे। तलाशी के दौरान हमें वाहनों से काले झंडे और तेल भी मिला। कर्नाटक की हाई प्रोफाइल मांड्या लोकसभा सीट पर विभिन्न अटकलों के बाद जनता दल सेक्युलर ने पुष्टि की है कि उसके दूसरे प्रमुख और पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी पुराने मैसूर क्षेत्र की इस हॉट सीट से चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार अपने गठबंधन सहयोगी जेडीएस को मंड्या, कोलार और हासन सीट आवंटित कर दी है और आखिरकार इन 3 सीटों के नामों पर मुहर लगा दी गई है। इससे पहले एचडी कुमारस्वामी ने कहा था कि उनके स्वास्थ्य संबंधी कारण शायद उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं देंगे। पार्टी ने मंड्या से एचडी कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी को मैदान में उतारने पर भी विचार किया। हालांकि तमाम गणनाओं के बाद पार्टी ने मंड्या से पूर्व मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी। वर्तमान में सुमलता अमरीश, जो 2019 में मंड्या से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीती, मौजूदा सांसद के रूप में कार्यरत हैं। मंड्या वोकलिंगा का गढ़ एचडी देवेगौड़ा परिवार का गृह क्षेत्र था, लेकिन हाल के विधानसभा चुनाव में जेडीएस ने पुराने मैसूर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। वोट बैंक स्पष्ट रूप से कांग्रेस पार्टी की ओर झुका हुआ है, जिसका प्राथमिक वोकलिंगा चेहरा डीके शिव कुमार है। कांग्रेस ने अब मांड्या से स्टार चंद्रू के नाम से मशहूर वेंकटरमना गौड़ा को बीजेपी जेडीएस के खिलाफ मैदान में उतारा है। स्टार चंद्रू डीके शिव कुमार के करीबी सहयोगी हैं और दक्षिण कर्नाटक में रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है। विजयपुर में आज विजयपुर जिला कांग्रेस समिति के कार्यालय में आगामी लोकसभा चुनाव की पूर्वभावी बैठक आयोजित की गई और इस मौके पर महिला दिवस भी मनाया गया। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अब्दुल हामिद मुशर्रफ सहित अन्य नेता आदि उपस्थित रहे। विजयपुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार मदिगा को बनाने की मांग। बीदर जिले में गुड फ्राइडे पूरी श्रद्धा से मनाया गया। कर्नाटक में 3 सीटों केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।